Am I audible to everyone? So today we'll try to do some problems based on your thermal expansion of your solids and as well as of your liquids. So first question try karo beta sabhi log. Everyone, let me see how many of you will give me the answer correctly. Chat box में answers देना fastly. Which of the following is the smallest temperature? How many? 1 degree Fahrenheit. क्यों बेटा? Why? Why not 1 degree centigrade? Why not B? वन 180 डिविजन्स. वेरी गुड. ब्यूमर में कितने डिविजन्स होते हैं बेटा? 80 डिविजन्स. डिग्री सेंटीग्रेड में स्टीम पॉइंट 0 होता है, स्टीम पॉइंट 100 एंड आइस पॉइंट 0, तो 100 डिविजन्स होते हैं. फॉरेन हीट में कितने डिविजन्स होते हैं बेटा? वेरी गुड. 180. एंड केल्विन में कितने होते हैं? 100. ठीक है. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिग्री स्मॉलेस्ट इन वेट बेटा फॉरेन हीट स्केल में. लार्जेस्ट किस में? ब्यूमर. ठीक है. चलो वेरी गुड. तो फर्स्ट वन के लिए मुझे आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. 1 degree Fahrenheit. Question number 2. The faulty thermometer reads 5 degrees in melting ice and 99 degrees in steam. The correct temperature in degree Fahrenheit when its faulty thermometer reads 52 degrees centigrade is how much? Can anyone? The faulty thermometer reads 5 degrees centigrade in melting ice and 99 degrees in steam. The correct temperature in degree Fahrenheit when this faulty thermometer reads 52 will be equal to how much? पहले सेल्सियस का देख लेते हैं. So it is C minus ice point is right now for me 5 divided by steam point is 99 minus this will be equal to your 5. That is equals to Fahrenheit में F minus of 32 divided by. So यहाँ पर number of divisions कितने हो जाते हैं? 180. ठीक है ना. So in faulty thermometer, like say for example, इसने क्या बोला? Faulty thermometer reads how much for me? 52. So in faulty thermometer, so it is 52 minus of your lower point is 5 divided by. ये कितना हो जाएगा बेटा? 99 minus 5. That will become for me 94. That is equals to your F minus of 32 divided by 180. ठीक है ना. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो कितना आ रहा है बेसिकली. दैट विल गिव मी द आंसर. थर्ड ऑप्शन 122 डिग्री फॉरेनहीट. वेरी गुड. क्लियर है बेटा? आया सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? जल्दी कर दो बेटा. कितना आ रहा बेटा? 52 minus 5 कितना होता है? 47. 47 divided by 94. That is equals to F minus 32 divided by 180. Sorry. So this will be equal to your 180. ठीक है ना.
ये कितने में जाएगा बेटा? 7 1 जा 7 2 जा 14, यानी दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो 1/2 इज इक्वल्स टू f minus 32 डिवाइडेड बाई 180. तो कितने में जाएगा? 2 1 जा 2 9 जा 18. So it is f minus 32 is equals to your 90. So f will be equal to how much बेटा? 90 plus 32. So 90 plus 32 कितना आ रहा? 122 degree for FE. This will be the answer. How many of you are giving the answer? Very good. आया सभी में सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर दो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एमिट दे रहा हूं बेटा मैं. क्वेश्चन नंबर 3. A Celsius and a Fahrenheit thermometer are put in water. The reading of the Fahrenheit thermometer is 3 times that of the Celsius thermometer. The reading of the Fahrenheit thermometer is how much? बोलना. 160. क्या 160 बेटा? डी ऑप्शन आ रहा है. 160 डिग्री आ रहा है. 160 Fahrenheit. चलो चेक करते हैं एक बार. A Celsius and a Fahrenheit thermometer are put in water. The reading of the Fahrenheit thermometer is 3 times that of the Celsius scale. So इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बेटा? C divided by 100 is equals to F minus 32 divided by your 180. है कि नहीं? So what is given in the problem for me? Given in the problem is third question के लिए the reading of the Fahrenheit scale यानी F is your 3 times that of your Celsius scale. That means given is F is equals to 3 times of your C. तो ये हो गया C by your 100 is equals to F is your 3C minus of 32 divided by 180. ठीक है ना? तो C की वैल्यू कितनी आ रही है देखो बेटा. This one and this one will get cancelled. 2 5s are 2 9s are. So this is your 9/5 is equals to your 3C minus of 32. पता है ना? So 9 यहाँ पर आ गया 5 पार्ट इक्वेशन. अपने को 3C निकालना पता है ना बेटा? Isn't? So what is the value of your Fahrenheit पूछ रहा है. So C की वैल्यू कितनी आ रही है? So from this one I'll be getting the value of your C. 26,270. किसी को आंसर आ रहा, किसी को कुछ और आंसर आ रहा. C की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आ रही है? 9 divided by 5 कितना होता है? 1.8. 1.8 is equals to 3C minus 32. So 3C will be equal to your 32 plus of your 1.8. होता है ना बेटा? तो ये कितना होता है? 32 33 यानी 33.8 आ गया. So I can write here C value. So C value will be equal to your 33.8 divided by 3. करेक्ट है ना? कोई गलती तो नहीं किया मैंने? तो ये कितना आ रहा है बेटा? 11.2 समथिंग. तो F की वैल्यू पूछ रहा है. दैट इज 3 टाइम्स ऑफ C. सो इट इज 3 into 11.2 अप्रोक्सीमेटली. है कि नहीं? 33 कुछ आ रहा है ना बेटा? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है आपको. Fahrenheit में पूछा था. रीडिंग ऑन द Fahrenheit scale will be equal to your how much? कुछ गलत कर रहे हैं क्या? The Celsius and the Fahrenheit thermometer are put in water. The reading of the Fahrenheit thermometer is okay. F is equals to 3 times of C. हाँ, तो C की वैल्यू कितनी आ रही? C की वैल्यू बराबर निकाले हम लोग. So it is C by 100. 5 0 0 चले गया. 2 5s are 2 9s are 18. So 9/5. 9/5 is equals to 3C. Sir, that is 9C. What is 9C beta? With 9C. Oh, sorry. तो वही बोल रहा हूँ कि इतना मिस्टेक क्यों जा रहा है? ठीक है चलो. Got it. हाँ, तो दिस वन इज 9C बेटा. तो यहाँ पर आ गया 9C डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 3C minus 32. ठीक है ना? वेरी गुड. सॉरी. तो C की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? C की वैल्यू कितनी आ रही?
ऑल द सी टर्म्स एक जगह ले लो बेटा, ऑल द सी टर्म्स यू टेक ऑन वन साइड. बताइए ना. Yeah, how many of you are giving the answer? So 1.8c a प्लस इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ योर, सॉरी, ये बनेगा माइनस ऑफ 1.2c इज इक्वल्स टू योर माइनस ऑफ 32. ये माइनस माइनस चले गया, सो c इज इक्वल्स टू 320 डिवाइडेड बाई 12 लिख सकता हूँ ना, isn't it? So कितने में जाएगा बेटा ये, 320 डिवाइडेड बाई योर 12 कितना आ रहा, 4 3s are 12, 4 80s, पता है ना, c is equals to your 80 by 3, isn't it? That's it. So c की वैल्यू आ गई, वेरी गुड. So f की वैल्यू पूछ रहा है, f is equals to 3 times of c, that is 3 into your 80 divided by 3, a3 और a3 चले गया, so is 80 is the answer. So f must be equal to your 80, यानी b will be the answer. कैलकुलेशन देख लेना बेटा, ज्यादा कुछ नहीं. वेरी गुड, ओके चलो फोर्थ वन देख लो बेटा. A centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registered 140 degrees. The fall in the temperature as registered by the centigrade thermometer is how much? Okay. A centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water. Okay. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registers how much? 140. The fall in temperature as registered by the centigrade thermometer is how much? That means he is asking the small change relation between the degree centigrade and as well as of your Fahrenheit. तो हम लोग ने ये फॉर्मूला याद रखा था, change in your degree centigrade divided by 100 is equals to your delta F divided by 180. स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोग को, याद है? डेल्टा F कितना दे रखा है बेटा, कितना रीड कर रहा है देखो पहले, फोर्थ वन में बॉइलिंग पॉइंट पे रखा गया हुआ था, तो इनिशियली 140, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, फॉरेनहीट थर्मोमीटर रजिस्टर्स हाउ मच, 140, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर फॉरेनहीट कितना होता है, 212, तो ये हो गया 212 माइनस ऑफ योर 140 डिवाइडेड बाय योर 180, ठीक है ना. तो कितना आ रहा है देखो, डेल्टा सी इज इक्वल्स टू योर, ये 100 इधर चले जाएगा इनटू दिस वन विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी, दिस इज 212 माइनस ऑफ योर 140, कितना आ रहा है बेटा, 212 minus 140, this will be 72. 72 divided by 180, ये वाला चले गया, isn't? See how much I'm getting right now, 100 into 72 divided by 180, यानी this one is 10 into 72 divided by your 18, कितना आ रहा है देखो, एटीन वन 18 4 4 into 10 40, so 40 degree centigrade must be the answer. So fourth one के लिए आंसर होना चाहिए 40 degree centigrade. Water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registered कितना, 140, एक्चुअल कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट बेटा, 212, तो ये रिलेशन लेके कर लिया मैं. आया सभी को ये वाला 40, वेरी गुड. बेटा साहब बाकी के लोग भी हेल्प आउट करना, वर्कआउट करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, खाली बैठे तो नहीं होता, पेपर पेन लेके करते रहना, ट्राई करते रहना, चाहे मिस्टेक ही क्यों ना जाए. यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू डू द प्रॉब्लम्स. एक से दो बार गिरते रहोगे, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन करते रहना आप लोग, ठीक है. चलो फिफ्थ वन देखो बेटा, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए कॉपर क्यूब इन डिग्री सेंटीग्रेड वर्सेस फॉरेनहीट. The sign of the angle made by the graph with the degree Fahrenheit axis is how much? Good question. A graph is plotted between the temperature of a copper cube in degree centigrade versus Fahrenheit. यानी अपने को relation between degree centigrade and Fahrenheit के बीच में होनी चाहिए. Sir, how you got 212 minus 140? Where बेटा?
डेल्टा एफ का हाइयर टेम्परेचर बेटा, डेल्टा एफ मतलब क्या, डिफरेंस ना। बॉइलिंग पॉइंट इज 212 और रजिस्टर्ड कर रहा है कितना अपने को 140। एक्चुअली लोअर पॉइंट कितना होता है 32 होता है, यहाँ पर 32 की जगह 140 दे रखा है। प्रॉब्लम में खुद दे रखा है बेटा को, isn't it? For any thermometer registers how much? Lowering point is 140, इसलिए मैंने 140 लिया हुआ, ठीक है सर। सर C by 180, so we can also do sir 140 minus 32 by 180, we can also do, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम। F minus 32 कब लोगे, जब लोअर पॉइंट व्हाट यू कॉल दैट वन, नहीं बेटा देखो प्रॉब्लम में दे रखा है क्या, देखो सेंटीग्रेड फॉरेन थर्मामीटर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी। तो वाटर टेम्परेचर इज लोअर अंटिल द फॉरेन हीट टेम्परेचर रजिस्टर्ड 140, so 140 उसका लोअर टेम्परेचर है बेटा। द फॉल इन टेम्परेचर रजिस्टर्ड विद सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू हाउ मच, नहीं ले सकते, वी नीड टू टेक द रिलेशन ऑफ योर डिफरेंस, ठीक है। चलो फिफ्थ वन देखो, a graph is plotted between temperature of a copper cube in degree centigrade and as foreign heat. The sign of the angle made by the graph with foreign heat axis will be equal to how much? चलो फिफ्थ वन देख लो एक बार। पहले मुझे जल्दी ये बताओ डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेन हीट का रिलेशन क्या होता है, याद है ना सभी को, कोई बता सकता है? C is equals to और कितना बेटा 5/9 into F minus 32, याद है सभी को। और C is equals to 5F divided by 9 minus of your, ये हो जाएगा 5/9 into 32, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। अब आप y is equals to mx से अगर कंपेयर करें, y is equals to your mx plus c से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये देखो ट्राइंगल ऐसा बनेगा, दिस विल बी योर थीटा, isn't it? So what will be the slope बेटा, स्लोप की जगह क्या है, x की जगह हम लोग फॉरेन हीट ले रहे हैं, y की जगह ले रहे हैं, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो ग्राफ विल बी नेगेटिव। तो स्लोप कितना है मेरे पास tan थीटा, tan थीटा मतलब कितना 5/9, मतलब ये हो गया 5 और ये हो गया 9, तो इसका हाइपोटेनस कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 5 5 25, 9 9 81, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ योर 106, ठीक है। tan थीटा अगर 5/9 है तो sin थीटा कितना बनेगा बेटा, so sin theta will be from the figure 5 by under root of 106, ठीक है ना। तो theta will be equal to your sin inverse of 5 by under root of 106, so this will be your answer। आया सभी को, is that clear for everyone? Very good, ठीक है चलो नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन ट्राई करो सभी लोग। When a platinum resistance thermometer is put in contact with ice, steam and a liquid, the resistance of the platinum wire is recorded as 2 ohms, 3 ohms and 4 ohms respectively. The temperature of the liquid is how much? The temperature of liquid is how much? Okay. तो यहाँ पर रेसिस्टेंस में दे रखा है, तो रेसिस्टेंस में दे रखा है तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोला था आप लोग को लेने का तरीका x के टर्म्स में लेना है, तो x कैन बी एनीथिंग बोल के बोला था ना, वो रिलेशन ले लो। So T is equals to x at t degree centigrade minus x at your 0 degree centigrade divided by x at 100 degree centigrade minus x at 0 degree centigrade into your 100. X can be anything I told you. X can be resistance, x can be temperature, anything. तो अब यहाँ पर रेसिस्टेंस में दे रखा है तो टेम्परेचर T is equals to रेसिस्टेंस at t degree centigrade minus रेसिस्टेंस at 0 degree centigrade divided by रेसिस्टेंस at 100 degree centigrade minus रेसिस्टेंस at 0 degree centigrade into your 100. क्लियर है बेटा? So resistance at t degree centigrade कितना दे रखा है? So when a platinum resistance thermometer is put in contact with ice, आप लोग के पास क्वेश्चन है, देख लिया आप लोग, एक बार देख लीजिएगा। Ice, steam and water, the resistance of platinum wire is recorded as 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm. Okay, ice के पास, steam के पास और liquid के पास, steam ice के पास 2 है, steam के पास मतलब 100 degree centigrade और liquid के पास 4 ohm से। The temperature of the liquid will be equal to your how much? यानी resistance at your t degree centigrade. So that is equals to how much for me? 4 minus resistance at 0 degree centigrade is 2 ohms divided by 100 degree centigrade के पास है 3 minus of your 2 into your 100, ठीक है ना। 4 minus 2 that is nothing but 2 divided by 3 minus 2 that is 1 into your 100, so this will be equal to your how much? 200. So T will be equal to your 200 degree centigrade, so this will be your answer. Clear?
सो सिक्स्थ वन का आंसर हो गया 200. डी ऑप्शन विल बी द आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट वन, 10th वन देख लो बेटा एक बार. Gas thermometer are most sensitive than the liquid thermometer because gases expands more than liquids. कोई बोलेगा इसका आंसर जल्दी से देख लो, बोलो. Anyone give me the answer for this one. बोलना. मैंने रीजन पे बहुत क्लियरली क्लास में बताया था. फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड. ऐसा है ना. The gas thermometer are more sensitive than the liquid thermometer because gas expands more than liquid. Gases are easily available. Gases are much lighter. Gases do not easily change the state. So first option will be the answer for this one. Question number 11. A steel rod is 1.5 centimeter in radius at 25 degrees centigrade. A brass ring has an internal diameter of 2.992 centimeter at 25 degrees centigrade. The common temperature at which the ring just slides on the rod is how much? अल्फा ऑफ स्टील दे रखा है, अल्फा ऑफ ब्रॉस भी दे रखा है. अच्छा वाला क्वेश्चन है, ट्राई कर ली एक बार. स्टील रॉड है जितना 1.5 मीटर इन रेडियस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रेडियस लिखो या लेंथ लिखो, वन इन द सेम बेटा. A brass ring has a internal diameter of 2.992 centimeter at 25 degree centigrade. ठीक है? Okay. The common temperature at which the ring just slides on the rod will be equal to how much? Anyone? देखो दो कॉमन टेम्परेचर पूछ रहा है, सच दैट द रिंग जस्ट स्लाइड्स ऑन द रॉड, यानी एट सम कॉमन टेम्परेचर बोथ विल बी हैविंग द सेम डायमीटर. इसका मतलब वही है. ओके, what is the common temperature at which the ring just slides on the rod, यानी at some common temperature both of them will be having the same diameter. Okay, what is that common temperature? अगर मैं कॉमन टेम्परेचर T लेके चलूं तो इसका टेम्परेचर कितना है 25, isn't it? तो अपने को T की वैल्यू निकालना. क्लियर है? चलो ट्राई करते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 11. चलो कॉमन टेम्परेचर कितना होगा बेटा? लेट कॉमन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T. तो डेल्टा T कितना बन जाएगा बेटा? T माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 25 डिग्री. T2 माइनस T1 होता है ना बेटा. तो T1 अपने पास 25 है और T2 मान के चलो सम T है. ठीक है ना. तो डेल्टा T कितना हो रहा है? डेल्टा T इज योर T माइनस ऑफ योर 25. क्लियर है? Q इज सेम. व्हाट इज Q बेटा? तो दोनों का डायमीटर सेम रहेगा बेटा. एट कॉमन टेम्परेचर I can say that common temperature both have same diameter. है कि नहीं? Then only they can slide on one above the other. So diameter का फॉर्मूला, diameter मतलब लेंथ ही होगा ना. So diameter D is equals to your initial diameter D naught into 1 plus alpha of this one. कितना है basically alpha? देखो 11th one का. This one is how much for me over 18. This is 12. Alpha of steel. Okay, steel है ना. तो alpha of your steel into your delta T. ठीक है ना. दोनों का diameter. This is for your for what? First one is right now for me. There is this question. Yeah. Steel rod के लिए. Another one is brass. So this is the diameter of your steel, and diameter of your brass will be equal to D naught into 1 plus alpha of your brass into delta T. So delta of your steel is equals to diameter of your brass. ठीक है ना. सो इसका डी नॉट कितना है बेटा? स्टील का इनिशियल लेंथ कितना है? 3.000 इंटू हो गया 1 प्लस दिस इज 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू योर टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट डेल्टा टी. दैट विल बी इक्वल टू, इसका कितना है? 2.992 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 इंटू डेल्टा टी. इसका कैलकुलेशन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिए. विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा टी इसमें से. क्योंकि मुझे तो करना नहीं है इसको, इसलिए मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ. सो प्लीज ट्राई टू डू दिस कैलकुलेशन. तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी. सो अगर हम लोग को डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर टी, isn't it? So as delta T is equals to T minus of 25, whatever the value we get here, you substitute T minus 25. That common temperature अपने को आ जाएगा. ठीक है ना. आप लोग कर लीजिए वरना टाइम वेस्ट होगा इस कैलकुलेशन के अंदर.
वो मेथड याद रख लीजिए, काफी है। इसमें कैलकुलेशन का ही झंझट है पूरे चैप्टर में। चलो 12th वन एक बार ट्राई कर लो बेटा। A uniform solid broad sphere is rotating with an angular speed omega naught about a diameter. If its temperature is now increased by 100 degrees centigrade, its new angular speed is given coefficient of linear expansion of the Bros is how much? ये मैंने आप लोगों को बताया था, law of conservation of your angular momentum का concept लगेगा इसमें, isn't it? That is your initial angular momentum I1 omega 1 is equals to your I2 into your omega 2. ठीक है ना? आपने को निकालना क्या है अपने पास? What is asking in the problem right now? The uniform diameter formula is nothing but length formula बेटा। ये जो diameter है, diameter is nothing but length का dimension होता है ना, क्यों confuse हो रहे हो? L2 is equals to your L1 into 1 plus alpha into delta t. तो इसको L को मैं रेडियस में भी लिख सकता हूँ, R2 is equals to R1 into 1 plus alpha into delta t. इसको मैं diameter में भी लिख सकता हूँ, diameter D2 is equals to D1 into 1 plus alpha into t. कॉमन सेंस की चीजें हैं जो आपने को याद रखनी है, ठीक है ना? इज इट क्लियर बेटा? नो डाउट? ठीक है, चलो वेरी गुड। उसके बाद इसने क्या पूछा, चलो यूनिफॉर्म सॉलिड बरास स्फीयर, यानी सॉलिड है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 m²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर इज 2/5, हैलो स्फीयर 2/3, याद रख लो। फॉर सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, सो हाउ यू गॉट द डायमीटर फॉर्मूला? ओके गॉट इट ना। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2/5 m²। हैलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2/3 m²। इसको आपको याद रखना है जब तक आपका रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं खत्म होता। So anyhow, a uniform solid Bros sphere is rotating with an angular speed omega naught about a diameter, and if its temperature is now increased by 100 degrees centigrade, its new angular speed is how much? Coefficient of linear expansion of the Bros is given as 2 into 10 to the power of that one. तो अपने को निकालना है I2, अपने को निकालना है सॉरी omega 2. So omega 2 will be equal to your I1 omega 1 divided by your I2. ठीक है? So what is an I1 beta? Initial moment of inertia for solid sphere is 2/5 m into your r square into initial angular velocity is omega naught ले लेता हूँ, divided by diameter के पास में moment of inertia 2/5 m into your r square into ये कितना हो जाएगा 1 plus 2 alpha into your delta t. ये बताओ कैसा आया मुझे, किसी की आइडिया है? किसी को आइडिया है? एरिया में इंक्रीज हो रहा ना बेटा, डायमीटर मतलब, isn't it? I is equals to your I naught into 1 plus beta into delta t. Beta is how much for me beta? Beta is how much? अल्फा बीटा का रिलेशन होता है ना एरिया का क्रॉस सेक्शन, isn't it? तो A2 is equals to beta is equals to, जैसे हम लोग लिखते हैं A2 minus of A1 divided by A1 into delta t. यानी A2 will be equal to how much? A1 into 1 plus beta into your delta t. So we know the relation alpha is to beta is to gamma कितना होता है? 1 is to 2 is to 3 होता है। तो बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन कितना होता है बेटा? Isn't it? Alpha is equals to your how much for me? Beta is equals to कितना आता है? Beta is equals to 2 times of your alpha. ठीक है ना, वही वैल्यू यहाँ पर डाला है मैंने। सो 2/5 mr², इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो देखो क्या क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ सिंप्लीफाई कर सकता है कोई? क्या क्या कट जा रहा है देखो, 2/5 mr² कट गया, तो ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू योर ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 1 plus 2 alpha into delta t. कैलकुलेशंस खतरनाक है इसमें। So that will be equal to your omega naught divided by 1 plus 2 into alpha की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? What is the alpha value given for this one? 12th question.
2 into 10 to the power of minus 5. Okay, 2 into 10 to the power of minus 5. 2 into 10 to the power of minus 5 into temperature is 100. ठीक है ना. अब इसको आप कैलकुलेशन कर लो, आप लोग की ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी. It is 1 यानी 2 2s are 4. 100 इंटू यानी 10 to the power of minus 3 आ जाएगा. एक बार चेक कर लो बेटा कैलकुलेशन कितना आ रहा है इसका. 1 is to 2 times of alpha. हाँ, ठीक है. तो इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, इसको कैलकुलेट कर लो. सी हाउ मच आई एम गेटिंग फॉर दिस वन बेटा. 1 प्लस ये लिख देता हूँ फिर भी, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 2 4. इससे मल्टीप्लाई हो गया. सो दिस वन इज 2 इंटू 100 यानी ये हो जाएगा इंटू 100 भी है ना फिर इसको. सो ये हो जाएगा 400 होता है ना. सो इट इज योर 200 इंटू, ये सब मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा. तो दिस वन विल बी इक्वल टू 2, पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो. सो ये हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ प्लस 2. ठीक है ना. सो दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू, तो यहाँ पर बन जाएगा 200 प्लस दिस विल बी 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 में से प्लस 2 निकाल दो. कितना बचेगा बेटा, कितना बनेगा. तो बोलता नहीं है. फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 0.10 to the power of minus 3. हाँ, 10 to the power of your minus 3. 10 to the power of minus 3 मतलब I can write that one as 10 to the power of minus 1 divided by 100. तो ये वाला चले जाएगा. So that will be equal to your omega naught divided by 1 plus. So this will be 2 into this will be 2 plus 0.1 आ जाएगा. So that will be equal to omega naught. बस अब इसका कैलकुलेशन देख लो बेटा. That will give me the answer. आप लोग जरा क्रैश करो. 2 omega naught. What is 2 omega naught? ओके, ऑप्शन देखो इसने क्या दे रखा है. 12th वन का आंसर आपको आना चाहिए. विच ऑप्शन कैन बी मैनेजेबल. फोर्थ ऑप्शन दे रखा है. आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो बेसिकली. ठीक है, चलो. थर्टीन पर टाइम है अभी. हाँ चलो. द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर द ब्रॉस एंड दैट फॉर आयरन. ओके, ब्रॉस का दे रखा है, आयरन का भी दे रखा है. द लेंथ ऑफ द ब्रॉस एंड द आयरन आर टू बी टेकन सो दैट द डिफरेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन्स. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन है बेटा. ये देखो, द डिफरेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन्स 0.1 मीटर विद एनी वेरिएशन इन टेम्परेचर. मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया था. इन एनी टेम्परेचर अगर उन दोनों का डिफरेंस सेम होता है, अल्फा 1 इंटू L1 मस्ट बी इक्वल टू अल्फा 2 इंटू योर L2. याद है, याद है, याद है किसी को. डिफरेंस बिटवीन देम, अगर लेंथ का डिफरेंस ऑलरेडी एक्सपैंड होना चाहिए, अगर सेम टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, अगर उन लोगों का डिफरेंस सेम है मतलब क्या होना चाहिए. L1 अल्फा 1 विल बी इक्वल टू योर L2 अल्फा 2. याद है किसी को. चलो वही क्वेश्चन कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट वन में देखो रखना अल्फा ऑफ 1 दैट इज नथिंग बट इफ योर वन ऑफ द बॉडी क्या दे रखा है. Alpha of linear expansion for brass and that of iron. Okay, alpha of your iron I लिख रहा हूँ. Length of your iron will be equal to alpha of brass length of your brass. Okay, so what is given in the problem is length of iron minus length of your brass is equals to 0.1 meter. दोनों का डिफरेंस कभी भी इतना ही है. यानी चेंज भी कितना हो रहा है. एल आई डैश आप हीट करने के बाद भी एल बी डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1 मीटर. ठीक है ना. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. चलो, अल्फा ऑफ योर आयरन कितना दे रखा है बेटा. अल्फा ऑफ योर आयरन इज 12 into 10 to the power of minus 6 and another one is 18 into 10 to the power of minus 6. Okay, this one is 12 into 10 to the power of minus 6 into length of iron is equals to 18 into 10 to the power of minus 6 into length of brass. 10 power minus 6 10 power minus 6 चले गया. So ये कितने में जाएगा बेटा. हाँ, तो this will become for me 2 times of length of your iron is equals to 3 times of length of your brass. ठीक है ना. 6 2s are 6 3s are.
So 2Li is equals to 3 times of your LB. ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है. मान के चलो कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. So now I hope you can calculate this length बेटा. Li की वैल्यू आ गई, Lb की वैल्यू आ गई. So 2 times of your Li, तो individually you can solve. So now solve it. Solve 1 and 2. इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो लेंथ ऑफ योर आयरन माइनस लेंथ ऑफ योर ब्रॉस इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर. सो लेंथ ऑफ आयरन कितना बन जाएगा? लेंथ ऑफ आयरन इज 3 टाइम्स ऑफ योर LB डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ योर LB इज इक्वल्स टू 0.1. तो इसमें LB कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर कहीं लिख रहा हूँ देखो. लेंथ ऑफ योर ब्रॉस इज कॉमन, तो दिस इज 3/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.1. ठीक है ना? ये कितना आएगा कोई बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन बेटा? 3/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.5. 1.5 माइनस 1 कितना होता है? 0.5. दैट मींस इट इज LB डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, एंड दिस विल बिकम फॉर मी 1/10. 0.1 मतलब 1/10. 2 1s are 2 5s are. बताइए ना बेटा, इज इट क्लियर? तो लेंथ ऑफ ब्रॉस कितना बन रहा है? लेंथ ऑफ ब्रॉस कितना बन रहा है बेटा? लेंथ ऑफ ब्रॉस इज 1/5. 1/5 मतलब कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.2 meters. So length of your broth is 0.2 meters. If length of broth is this much, then length of your iron will be equal to how much? 3 into length of your broth divided by 2 ना बेटा. So this is 3 into this one is 0.5, यानी 1/5 लिख सकता हूँ ना. So that will be equal to 0.2 divided by 2. So 2 into 0.1. यानी that will become for me 0.3 meters. So length of your iron will be equal to 0.3 meters. ठीक है? क्लियर है? 0.3. वेरी गुड. चलो, और एक दिन टाइम लगे सर का यार, मेरे दूसरे क्वेश्चंस भी करना है, बेसिकली दूसरे टॉपिक्स भी है, अपने को कैलोरीमेट्री खत्म करना है और वी नीड टू इवन कंप्लीट हीट ट्रांसफर आल्सो. आप लोग ये क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करो बेटा. चलो नेक्स्ट वन एक बार ट्राई करो आप लोग. A steel tape gives the correct temperature at 22 degrees centigrade. A piece of wood is being measured with a steel tape at 0 degrees centigrade. The reading is 26 centimeter on the tape. Okay. The real length of the given piece of the wood must be 26 centimeter, lesser than 26 centimeter, greater than 26 centimeter. None of this. इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक मैंने मेटल टेप्स का जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो लगा के बोलना चाहिए. Steel tape gives the correct temperature. Steel tape gives the correct temperature at 22 degrees centigrade. A piece of wood is being measured with this tail shape at 0 degree centigrade. अपन ने एक वुड को लिया और उसको मेजर किया. अब वो रीडिंग कितना बता रहा था? 0 degree centigrade पे 26 centimeter on the tape. The real length of the given piece of the wood will be equal to how much? क्योंकि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा है, अभी कम टेम्परेचर पे हो रहा ना बेटा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या हो गया? स्टील टेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना बेटा, तो उसके ऊपर के जो वैल्यूज रहते हैं दे विल कम वेरी क्लोजर. And wood is a bad conductor of your what do you call that one? Heat. So उसका लेंथ तो सबको सेम रहेगा, तो चेंज नहीं होगा. So steel tape will measure how much length beta? More than actual at 0 degree centigrade. So actual length of the wood will be equal to how much? Actual length of the wood will be equal to how much? Anyone? Contract होगा ना, तो reading will be equal to how much? Lesser. That means it will be less than 26 centimeters. B must be the answer. आया सभी को? आया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कोल्ड कंट्रीज में. मैंने बोला था ना जब आपको रीडिंग क्या बताएगा? ज्यादा बताएगा, तो एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी? उससे कमी होगी ना, बेसिकली जो बता रहा है उससे तो कमी होगी ना. द रियल लेंथ ऑफ द गिवन पीस वुड बी लेसर देन 26 सेंटीमीटर. ठीक है, मीटर स्केल का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ो, रिकॉर्डिंग में भी है वो. ठीक है, चलो पेंडुलम क्लॉक का क्वेश्चन. अच्छा, ए पेंडुलम क्लॉक मेड अप ऑफ इनवर हैज ए पीरियड ऑफ 0.5 सेकंड्स, यानी टाइम दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. If the clock is used in a climate where the average temperature is 30 degrees centigrade, how fast or slow will the clock run in 10 to the power of 6 seconds? ये अपन को तो फॉर्मूला याद है. I hope you remember the formula. I don't know. This is your question number 14. यहाँ पर नहीं कर देता हूँ.
loss in time period delta t by your t is equals to your half into alpha into your delta t. Delta t is the time interval, isn't it? तो ये कितना बन जाएगा बेटा, हाफ इंटू अल्फा इंटू योर डेल्टा टी इन हाउ मच टाइम, डेल्टा टी कैपिटल टी कितना दे रखा है इंटू योर कैपिटल टी. So this will become for me half into alpha value is 10 to the power of minus 6, temperature is your 10 into time period is 10 to the power of 6. तो बहुत आसानी से ये तो कैलकुलेट कैंसिल हो गए. तो ये इज 10 by 2, 2 1 जा 2 5 जा. सो दिस हो गया 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड्स क्या हो जाएगा, स्लो होगा कि ये हो जाएगा स्लो. मैंने आपको कंडीशन बताया था उसके लिए 5 सेकेंड स्लो. वेरी गुड. चलो ठीक है. 13th क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 था ये, 18 and 19th क्वेश्चन था. So this one was 19th question. नहीं हो गया बेटा यार. ठीक है. 20. Question number 20. A uniform metal rod is used as a bar pendulum if the room temperature rises by 10 degrees centigrade. Coefficient of linear expansion of the metal rod is 2 into 10 to the power of minus 6 per degree centigrade. The period of the pendulum will increase by your how much? कोई कर सकता है? सेम फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही लगाना है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. पूछ क्या आ रहा है वहां पर, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल इंक्रीज बाय और हाउ मच परसेंटेज, यानी डेल्टा टी का फॉर्मूला, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय योर टी इज इक्वल्स टू योर हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, यानी टाइम इंटरवल टाइम व्हाटएवर द टी कैन बी. ठीक है ना. अल्फा कितना दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है, लेट मी चेक. हाउ मच फास्ट और स्लो विल इट गो. इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री. मेटल की अल्फा वैल्यू दे रखा है 2 into 10 to the power of minus 6, टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल इंक्रीज बाय योर हाउ मच, और टाइम कितना दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर टेम्परेचर, अल्फा इंटू योर डेल्टा टी. Okay, delta t that is equals to your half into alpha की value 2 into 10 to the power of minus 6 into temperature is 10. ये 2 और ये 2 चले गया. So this will be equal to 10 to the power of minus 5. So temperature का time period है, time period यानी into 100 कर लो. That is 10 to the power of minus 5 into your 100 कर लो. So that will become for me 10 to the power of minus 3%. This will be your answer. So 20 का आंसर होना चाहिए आपको 20 into 10 to the power of minus 3%, and the third option will be the answer. ठीक है ना. थोड़े क्वेश्चन से लेंथी है बेटा, क्योंकि आप लोग थोड़े अच्छे सेक्शन से, इसलिए मैंने थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस लिए, वरना मैं अब थोड़ा ही बेसिक वाले क्वेश्चंस के लिए ही चले जाता. शायद नेक्स्ट सेक्शन के लिए ये क्वेश्चंस ना करूं, मैं डिफरेंट क्वेश्चंस करूं. अगर आपको होना है तो वो क्लास के नोट्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बाकी के क्वेश्चंस आप लोग एक बार ट्राई करो, नहीं बोले तो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट बेटर वी कैन डू इट आउट. ये क्वेश्चन कोई बोल सकता है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 28. Two straight thin bars, one of the brass and another of the steel are joined side by side by a short steel piece at 0 degree centigrade. The thickness of the each bar is 1 centimeter when heated to 100 degrees centigrade. The composite bar is bent into an arc of a circle. The radius of this circle is how much? इसका फॉर्मूला याद है किसी को? इसका फॉर्मूला याद है किसी को? ऐसा कुछ होता था आर्क का कंडीशन में, मैंने बताया था. एक ये वाला एक पॉइंट होता है, ये सेंटर पे होता है, ऐसा वाला कुछ कंडीशन लिया था. ऊपर कितना होता है ब्रॉस, और नीचे वाला कितना होता है स्टील, और इसका थिकनेस होता है डी, और इसका भी ये थिकनेस होता है डी. याद है किसी को फॉर्मूला? और ये इसका हो जाता है रेडियस. फॉर्मूला बताओ जल्दी से. रेडियस r is equals to thickness divided by alpha of your gross, यानी जिसका ज्यादा उसका पहले लिख लेना, माइनस ऑफ योर अल्फा ऑफ योर स्टील into your temperature difference, that is nothing but delta t. इसको सिंप्लीफाई कर लो. थिकनेस दे रखा है अपने पास 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, इसका डिफरेंस कितना है देखो बेटा. अल्फा ऑफ ब्रॉस का वैल्यू है 19 into 10 to the power of minus 6 minus 11 into 10 to the power of minus 6.
इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा 0 से 100 यानी 100। तो कितना आ रहा देख लो एक बार, सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर्स में ही आंसर, तो आपको सेंटीमीटर्स में ही रखना है। तो दिस विल बी योर 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 को मैंने बाहर ले लिया, दैट इज 19 माइनस ऑफ योर 11 into your 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, वट एवर आंसर इज इट दैट विल बी द आंसर। ठीक है, देख लो जितना आ रहा आंसर जल्दी से। आर्क लेंथ इज, हाँ आर्क लेंथ है, लेकिन अपने को रेडियस का फॉर्मूला आइडिया है ना बेटा, हम लोग ने डिराइव किया था एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में, डिराइव नहीं किया था, सॉरी जरूरत नहीं है बोला था मैंने, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, इस पे प्रॉब्लम करना है। आर इज इक्वल्स टू कैसे यूज होता है। ठीक है, वन 1250 आ रहा, ठीक है चलो 1250, वेरी गुड। चलो 33 का देखो बेटा आंसर, कोई बोल सकता है? देखो 33 का रिलेशन, coefficient of linear expansion of a crystal in one direction is alpha 1 and that in every direction perpendicular to is alpha 2. Coefficient of cubical expansion will be equal to your how much? मैंने आप लोगों को बताया था gamma will be equal to your alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. एक डायरेक्शन में कितना है अल्फा 1 है, बाकी के दो डायरेक्शन में सेम है, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 2 times of alpha 2. डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्या आंसर हो जाएगा अल्फा 1 plus 2 times of your alpha 2 गामा की वैल्यू, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, थर्टी फाइव देखो जल्दी से। द एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड इज, the absolute coefficient of expansion of the liquid is 7 times the volume coefficient of expansion of vessel. Then ratio of absolute and apparent expansion of the liquid will be equal to how much? Apparent expansion का फॉर्मूला मालूम है, gamma apparent is equals to gamma of your real minus of your gamma of your glass, isn't it? Because gamma real will be equal to your gamma apparent plus gamma of your glass. So gamma apparent will be equal to gamma of real minus of gamma of your glass. गामा रियल कितना है बेटा, एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज 7 times द वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ योर वेसल। सॉरी ये इसको ऐसा लिखना है बेटा, सॉरी तो ये ऐसा आ जाएगा ये बेसिकली। तो गामा अपैरेंट विल बी इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ योर कंटेनर, सो दैट इज इक्वल्स टू गामा ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है 7 times ऑफ योर गामा ऑफ योर कंटेनर माइनस गामा ऑफ योर सी, यानी ये हो गया 6 times ऑफ गामा ऑफ सी। So therefore I can write here gamma of your liquid divided by gamma of apparent कितना है पूछा उसने, gamma of liquid कितना है 7 times of gamma of container divided by 6 times of gamma of container, ये वाला चले जाए 7/6, B will be the answer। Very good question बेटा, एक बार आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कर लीजिए 1 से 2 बार। ठीक है, तो 38 तो मैंने क्लास में करवाया था। 40 का ट्राई करिए बेटा, कोई अच्छा वाला क्वेश्चन है 40 पे। ठीक है, हम लोग कल के क्लास में कर लेते हैं, आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो, बाद में देख लेते हैं। ओके, सो टुमारो आई एम स्टार्टिंग विद योर कैलोरीमेट्री बेटा, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर से स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं सॉरी, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस करना है, वी नीड टू स्टार्ट विद योर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कर लें। अभी आप लोग के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, डोंट ट्राई टू नेग्लेक्ट, स्टार्ट वर्किंग आउट बेटा, लाइट मत ले लो। ऑनलाइन पे अभी आप लोगों को ज्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ एम्पल ऑफ टाइम, ट्रैवलिंग का टाइम कम हो गया, खाने पीने का टाइम कम हो गया, घर बैठे एक ही जगह बैठ के खा ले सकते हैं। सो शुड बी एन एक्चुअली एडेड एडवांटेज होना चाहिए, जो वीक एरिया है उस पर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह, बाय।